So hier spricht man, also hier nehme ich Satzstruktur, सेंटेंस मेकिंग. एकदम बेसिक क्लास है ये, कोई एडवांस क्लास नहीं है, बट बिकॉज सम स्टूडेंट्स ऑफ A1 and A2 have written me again and again, sir take a class on sentence making. That is why I have announced this. जो इस beginner dann gerade, I am just starting with the topic Satzstruktur. Struktur, sentence structure in German natürlich. So we will start with very basic thing, that is subject, verb and object. इसी टॉपिक का नाम है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव. ओके, also das ist also gleich है, das gleich है, वही चीज है. आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगा, बट आई एम श्योर जो नए लोग हैं दे विल डेफिनेटली बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो Satzstruktur इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ए सेंटेंस. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. Means without this we cannot even think of making sentences in German. Yeah. So what is subject, what is verb, and then what is object? We will talk about all 3 points. Background noise नहीं आना चाहिए आपको जब तक आप चाहो नहीं. हाँ, जानबूझ के करो तो कर सकते हो, प्लान है तो अलग बात है, otherwise just focus on the structure. So subject is, what is subject? Subject is a noun or pronoun. Yeah, normally there are 2 things which can be subject. Subject या तो कोई noun हो सकता है और it can be pronoun. So what is noun then? Subject can be either a noun or pronoun. There are 2 possibilities, noun or pronoun. Noun, what is noun? Noun is a thing, person, thing, person, place, feeling, animal, or maybe an idea. Okay, so this can be a noun. Subject कोई भी इनमें से हो सकता है. You say Ram is coming, so Ram is a noun. Ram is a person. The house is beautiful, so house is a thing, right? So subject will be either a noun or pronoun, and this is the definition normally for a noun. So noun में generally ये सब होता है. But noun are of 2 types. 2 तरह के noun होते हैं. It can be a proper noun or common noun. They can come in 2 categories. Either proper noun or common noun. Yeah? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन 2 कैटेगरी में से ये हो सकते हैं, बस 2 ही कैटेगरी में होंगे. ध्यान रखिए बैकग्राउंड में आपके नॉइस नहीं आए. आपके डाउट्स में लास्ट में लूंगा, पहले मैं आपको एक बेसिक चीज समझा पाऊं, क्योंकि डाउट मोस्टली आपके वही होंगे जो मुझे बताना है, तो पहले बता ही दूं, राइट? इसलिए मैं डाउट्स अभी नहीं ले रहा. सो इन ए सेंटेंस स्ट्रक्चर देयर मे बी n number of things, but the common basic things in a sentence, there are 3 things, or minimum requirement of a sentence is subject and verb. If you understand this part, then there will not be any problem. Subject can be noun, and this is the definition of a noun.
but noun can be of two categories, maybe proper noun or common noun. Proper noun का मतलब है, right? Proper noun means you say and we understand what you are talking about. It can be maybe Krishna. Okay. Yeah. Doubts last में लूंगा आपके, है ना? So if I say Krishna is coming, so if you are in my friend circle, you know name of my friend is Krishna and he is coming, so proper noun. If I say hey Krishna, so maybe you understand there is only one Krishna, Ram and Krishna, maybe. So in that context it is proper noun. Taj Mahal, so we all, right, think about one building, so this is proper noun, means you talk about some particular thing or person or maybe some animal. So proper noun का मतलब है specific thing, specific person, जिसकी मैं बात करूं और तुरंत आप कनेक्ट कर जाओ. मैं बोलूं रामधारी सिंह दिनकर, तो जिनको आइडिया है थोड़ा बहुत लिटरेचर का, हिंदी लिटरेचर का, वो समझ गए आई एम टॉकिंग अबाउट अ पोइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोइट एक्चुअली. तो वो प्रॉपर नाउन है. और अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं, कॉमन नाउन मीन्स अ नाउन हु और विच रिप्रेजेंट्स द होल रेस. मे बी फॉर एग्जाम्पल इफ आई से I need a teacher, but I am not talking about which teacher. मैं specify करके आपको नहीं बता रहा. I need a book. Which book? I am not telling you specifically. Specific और कॉमन. भाई दिक्कत मेरे को मैसेज मिला कि भाई एक लिंक पे तो केवल 150 लोग ही आ सकते हैं, इसलिए दूसरा लिंक और ज्वाइन कराना पड़ रहा है. ओके, सुल्डिगुंग उन डांके आउक, थैंक यू फॉर दैट. सो कॉमन एंड प्रॉपर. कॉमन नाउन मीन्स जनरल नाउन. You need a German teacher, you need a German teacher, it can be any German teacher, means common noun. We need the German teacher. If you say the German teacher, means you are talking about specific, means proper noun. ये फर्क है दोनों में. So subject can be noun and pronoun. एक बात तो ये होगी. और दूसरी बात, जो भी नाउन है, अभी तक केवल नाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी नाउन है दैट कैन बी प्रॉपर एंड कॉमन. प्रॉपर और कॉमन, दोनों का फर्क समझ आया? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? ओके, गुड. सो नाउ आई एम कमिंग टू प्रोनाउन. एनी वर्ड which can replace a noun is pronoun, is called pronoun. जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं रवि वर्मा is my friend, he is really very intelligent. So in second sentence I am saying he is intelligent. He, who? Ravi Verma. So the word he can be replaced for Ravi Verma. So pronoun will be er. In German language we have noun and pronoun. So now I will be writing here the basic pronoun ich, du, er, es, sie. ich, du. आपको अगर ये बेसिक दो तीन चीज हैं ये समझ में आ गई, then definitely you can make sentences. So that is why I am taking much time in it, because ये फंडा क्लियर होगा तभी तो, अदरवाइज तो वहीं पाओगे जहां थे. ich, du, er, es, sie, wir, जी. Yeah. So
these are personal pronouns. Yes, these are personal pronouns and you can replace them for any noun, because कोई भी नाउन होगा, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाएं, उनके लिए भी तो हम बोलेंगे, प्रोनाउन यूज कर लेंगे, क्योंकि भगवान डेयर गॉट, डेयर के लिए बोल देंगे एयर। इनका जो सबका जो बेसिक मीनिंग अगर आपको पता है, देन यू नो जी स्मॉल वन इज दे, कैपिटल जी इज यू, आप, that is formal. It can be singular and plural both, aap and aap sab, you and you all, but this G is they, way. Ear means you all, but informal plural, you all, informal plural. It can be also you both, तुम सब, and then ish is I, मैं, do is you, but informal singular, तू या तुम, do, air is he, वह, but it is singular and masculine, he. S is it and G is she. In Hindi we say वह, but here we will say it is for neutral it, and this is for he, and this is for she, for feminine. But all three are for singular. This is important to notice. All three are singular. It can be either masculine, feminine, or neutral in masculine. And then we have wear. Wear will be we. Okay, I can write here up. Wear will be we. Hum. This is plural of I. ये जो सब्जेक्ट है, ये ही आगे जाके आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा. We will just change. So this is the table for pronoun, personal pronoun, but in subject. There will be also part that would also clear the accusative or dative, that is object. ये आपको सब्जेक्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्ट भी क्लियर होगा. इन सब्जेक्ट समटाइम्स देयर इज कंफ्यूजन, ये ढंग से समझ में नहीं आती तो हम लोग इसी में उलझे रहते हैं. you should be able to change it or find the singular and plural. ओके, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही ना, यहां पे बैठना पड़ेगा. आर्या, यहां पे हेल्प करो इनकी. आप लेके आओगे अगली बार. इस बार दिक्कत आएगी तो अगली बार ट्राइपॉड एक एक्स्ट्रा और लेके आएंगे. ओके, सो इस इज एक्चुअली मुझे नहीं पता था आप लोग 150 से ज़्यादा आओगे क्या, पता नहीं था, तो एक्स्ट्रा ट्राइपॉड की व्यवस्था नहीं करी. बट आई शुड ट्राई. ओके, आई शुड से लाउडर. ओके, रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, अलग से भेजूंगा. नहीं आ रही तो छोड़ो क्लास. ओके, एंशुलिगो. ओके, थोड़ा जोर से बोलता हूँ. इश ओके, जस्ट वेट.
बोलूंगा तो आएगी, वेट करो। आएगी, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट। ओके, गया। सो जो पर्सनल प्रोनाउन हम लोग इश, डू, एयर, एस, जी जो हम लोग देख रहे हैं, ये यहां पे हालांकि ऑलरेडी मैंने लिख दिया ना, जो पर्सनल प्रोनाउन का हमने यहां लिख दिया, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, आप कल आ जाएं, कोई बात नहीं, अभी तो इसको करने दो, जितना मैं कर सकता हूं उतना कोशिश करो। बच्चे निराश होंगे, कुछ लोग आज आए हैं, वो कल और अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्या? इसी को मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए शेयर करूंगा, डोंट वरी, और ले लूंगा बाद में मैं क्लास। मेरे को किसी से पूछना थोड़ी है, फिर आ जाऊंगा। अभी जितना हो सकता है अपन कोशिश करते हैं, डोंट वरी। सो इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, जी, ईयर, जी, ये जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल है, इश, डू, एयर, एस, जी, ये टेबल सिंगुलर के लिए भी है, प्लूरल के लिए भी है। ये मैंने यहां पे लिख दी, इसी टेबल को यहां वापस लिखा है। यहां पे केवल इसलिए लिखा है ताकि आप फर्क फील करो कि इसमें सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। दिस साइड आई हैव रिटन सिंगुलर, ऑल द सिंगुलर्स आर हियर and all the plurals are here. Singular is ish, I, and plural is we. हम सब. I means me alone, but we're means we all, you and me, including me, all of us. So ये सब होगा, right? So इसका we're plural है, डू का ईयर प्लूरल है। डू का मतलब है यू सिंगल पर्सन, तू अकेला या तू अकेली, बट यू ऑल मीन्स तुम सब, ऑल ऑफ यू, तुम सारे के सारे, ऑल ऑफ यू। ईयर, एयर का मतलब है थर्ड पर्सन, आप भी नहीं, मैं भी नहीं, श्याम जी या सुरेश जी, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट मक्खन, I'm talking about Ravindra. Third person, okay, third person singular is air, third person singular, and S is it. It मतलब singular but again third person but article will be neutral. तीन तरह के आर्टिकल हो सकते हैं हमारे पास, masculine, neutral and feminine. सो फॉर एयर, जिसका भी आर्टिकल डेयर है, जिसका भी आर्टिकल, वो कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी क्यों ना हो, पत्थर भी मैस्कुलिन होगा, बिकॉज स्टोन के लिए जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ड है उसका आर्टिकल है डेयर। सो जो भी डेयर स्टाइन, आइंस्टाइन नहीं, डेयर स्टाइन, ओके। सो जो भी डेयर है वो एयर है, वो कुछ भी हो सकता है। जो भी दास है, जिसका भी आर्टिकल दास है वो एस है, और जिसका भी आर्टिकल दी है वो जी है। ये आपको कभी मैं अलग से सिखाऊंगा किसी क्लास में कि पता कैसे चले। आप लोग म्यूट करके रखें, म्यूट करके रखें अपनी तरफ से। ये सारे सिंगुलर हैं, ये इनके प्लूरल हैं। अब अगर मान लो जी आ गया आप, तो
इसका सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इस जी का मतलब है आप अकेले और इस दूसरे जी का मतलब है आप सब। आप सब, आप सब और आप अकेले। जी मतलब आप, नहीं वो तुम सब होता है। मतलब आपका मतलब है रेस्पेक्ट। यस, दिस इज फॉर्मल, दिस इज फॉर्मल एंड दिस इज इनफॉर्मल। यू, दिस इज ऑल्सो यू, बट दिस इज रेस्पेक्टफुल। आप सब, तू तुम सब, या तुम दोनों, यू ऑल, प्लूरल एंड दिस इज सिंगुलर। सो आपका जो सब्जेक्ट है इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मान लो आप कहोगे कि मेरी बुआ जी कहाँ हैं, तुम्हारी बुआ जी ये हैं, जी। जो भी सिंगुलर है, फेमिनिन है, वो ये है, वो तुम्हारी बुआ जी भी हो सकती है, राइट। एनीथिंग, थिंग भी हो सकती है इसमें। आर्टिकल होना चाहिए। हम लोग इसमें जो मेंशन का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, जब एनिमल भी आ सकता है। थिंग, मैंने बोला पत्थर, स्टोन जो है, स्टोन वो मैस्कुलिन है। तो आप ऐसे परेशान मत होना, नहीं नहीं हिंदी में तो पत्थर न्यूट्रल होता है, या फिर हिंदी में न्यूट्रल नहीं होता, हालांकि हिंदी में तो मैस्कुलिन होता है पत्थर। पत्थर पड़ा है, राइट, पत्थर पड़ा है तो वो मैस्कुलिन है। हिंदी में तो देर आर टू जेंडर्स, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। In English, we don't have such system, but in some languages there are three genders: masculine, feminine, neutral. So neutral can be also some person. For example, girl, लड़की। गर्ल जो है, गर्ल तो न्यूट्रल में आएगी। अब आप ये मत बोलना कि गर्ल तो स्त्रीलिंग है, वो हिंदी में है, आप ये कह सकते हो। बट इन जर्मन लैंग्वेज गर्ल इज एक्चुअली न्यूट्रल। सो ऐसे हम लोग डिसाइड करेंगे। आर्टिकल का आपको अलग से कभी सिखाऊंगा मैं। सो दिस इज अबाउट सब्जेक्ट। अभी हम लोग केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन। दीज आर प्रोनाउंस एंड नाउन कैन बी एनीथिंग। नाउन कैन बी प्रॉपर, नाउन कैन बी कॉमन। मुझे तो दो लोगों की जरूरत है जो मेरा मकान बना सकें। दो लोग, दो मजदूर, दो कारीगर, तो कोई भी दो कारीगर हो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं उनकी दो, मोहन जी की और खत्री जी की, उन दोनों की बात नहीं कर रहा। दे कैन बी एनी। अच्छे कारीगर होने चाहिए, कोई भी दो कारीगर चाहिए मुझे। सो दिस इज कॉमन नाउन। बट मैं बोलूं नहीं मोहन जी बढ़िया काम करते हैं, मैं तो मोहन जी से ही काम कराना चाहता हूं, राइट। तो नाउ मोहन जी इज ए प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर पर्सन। ओके, यहां तक अपन पहुंचे हैं, वापस से आगे बढ़ते हैं। सो अगेन, इफ यू विल मेक सेंटेंसेस, you need subject, verb and maybe object। हो सकता है ये। अभी तक हमने यहां तक की बात की है। नाउ विल टॉक अबाउट वर्ब। वर्ब पे आएंगे। सो सब्जेक्ट कैन बी इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी। अब आएगी आवाज। ओके, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी।
इसका जो सब्जेक्ट है वो आपको पता चल गया. इट कैन बी पर्सन, इट कैन बी थिंग, इट कैन बी प्लेस, इट कैन बी फीलिंग, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी एनी आइडिया. अब इसके अलावा एक बात और है, इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल. इट कैन बी ए नाउन और इट कैन बी ए प्रोनाउन. अब ये पूरा कवर हुआ है सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट इसके बाहर नहीं हो सकता. सब्जेक्ट इतना ही होगा, इसके बाहर सब्जेक्ट नहीं आएगा. क्या आएगी? मैं बना रहा हूं वीडियो तुम्हारे लिए, जल्दी दिखेगा. ओके, सो इश, डू, एर, एस जी, वियर, ईयर, जी, जी, ये सारे जो हैं ये सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं. अब जब वर्ब की बात करेंगे हम लोग, चिंता मत करो, अगली बार क्लास थोड़ी सी, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, अदरवाइज मैं शायद थोड़ा किसी टेक्निकल सपोर्ट को भी साथ में रखता, बड़े टेक्निकल सपोर्ट को. छोटा सा रखा हुआ है अभी एक. सो ये जो वर्ब है, वर्ब विल बी कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगी हमेशा. यू नो द मीनिंग हियर. द मीनिंग इज आई, you, he, it, she, we, you all, you both, you, आप और they. This is for singular, this is for subject. Now when you use the verb, verb will be conjugated like est, ttt, est. According to the subject it is conjugated. est मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको. t, 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 en, t, en, en, ऐसे करके. अब जैसे मान लो कि ये मोस्ट ऑफ द वर्ब्स के लिए ये रूल है. देर आर ऑल्सो सम इरेगुलर वर्ब्स, राइट, बट हम लोग रेगुलर वर्ब के हिसाब से अभी चल रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर रेगुलर. सो इसका मतलब यह है, सपोज द वर्ब इज जिंगन, टू सिंग, या इट कैन बी मखन, टू मेक, या कोखन, त्रिंकन. तो कोई भी एक वर्ब होगी, आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द वर्ब, द मेन पार्ट एंड द एंडिंग. वो हिंदी में भी ऐसा ही होता है, शायद दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऐसा होता होगा. जैसे मान लो खाना, जाना, नहाना. सो द ना पार्ट इज सेम. पहनना, पहनाना, पीटना, कूटना, कुट जाना, पिट जाना. सो दिस पार्ट इन जर्मन इज en. इन हिंदी इट इज जनरली ना. खाना, पीना, सोना, हंसना, लात मारना, घूंसा चलाना, राइट, रोटी खाना, जाना, हंसना, हंसाना. So generally in Hindi you will see na, but in German you will see en. But this is the original verb. Suppose नहाना, नहाना नहीं, हनाना हो गया. ये तो अलग है, बढ़िया रहा, कुछ और नहीं हुआ. ओके, सो नहाना कई दिनों से लिखी लगती है हिंदी. हाँ, नहाना. तो नहा will remain same and the ending will change according to the subject. मैं नहाता हूँ, मैं नहाती हूँ, हम नहाते हैं, वे नहाते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज सेम, दिस पार्ट इज सेम, बट ता, ती, ते, दिस चेंजेज, वो बदलता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ये बस एक बार सीखना पड़ता है आपको. जैसे हिंदी में ऐसे बदलता है, जर्मन में ऐसे बदलता है, इतनी बात है. ये जो बदल रहा है पार्ट, वो en बदल रहा है, en बदल रहा है, बाकी सब मामला सेम है. en बदल रहा है मतलब ये जो ओरिजिनल वर्ब थी मक्खन, फॉर एग्जाम्पल, दिस वाज द ओरिजिनल वर्ब एंड दिस en इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट.
अब मान लो यहां पे महाराणा प्रताप आ जाए, राइट, तो महाराणा प्रताप भी नहाते हैं शायद, हाँ, या हीरा है, हीरा नहाता है, हम खाते हैं, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस इतना देखना आपको अभी फॉर द टाइम बीइंग। अगर सब्जेक्ट इश है तो हर बार आपको इसकी एंडिंग को ई कर देना है, ये सीखने की बात है इसमें। अगर प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 पर्सन्स और मे बी 100 पर्सन्स, आई से दे आर कमिंग, दे, सो दे में पता नहीं चल रहा कौन कितने लोग हैं, बट प्लूरल इतना पता चल रहा है कि दे आर नॉट हियर। मैं बोल रहा हूं दे आर कमिंग, मतलब दे, you are not part of they, I am not part of they, means third person plural, they are coming. I can say 100 people are coming. So जब भी मैं plural की बात करूंगा and third person plural की बात करूंगा, I will conjugate the verb according to this last Z. अब किसी को ऐसा भी लग सकता है ये जी और ये जी तो सेम ही है, but here it will be singular and verb conjugation will be T, and here it will be plural and verb conjugation will be en. ये आपको समझ में आता है जब आप 150 सेंटेंस बना लेते हो, तब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। सो जब आप सेंटेंस बनाओगे, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इन द सेंटेंस व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो काम करता है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं पढ़ाता हूं, मैं ये काम करता हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं तुमको पढ़ाता हूं, तो अभी भी मैं पढ़ाता हूं और तुम पढ़ते हो, तो तुम सब ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये मत करना हम तो आदमी हैं, ऑब्जेक्ट बता रहे हो, मतलब जो काम करता है, आई एम डूइंग दिस, आई एम परफॉर्मिंग दिस टास्क। सो जो भी काम करता है नॉर्मली, वो सब्जेक्ट होता है नॉर्मली, और जिन पे काम होता है वो ऑब्जेक्ट होते हैं। आप पे काम हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप बैठे हो, आप पे काम हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो कोई जादू नहीं कर रहा, बट आप सुन रहे हो, मैं एक्टिवली आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। सो यू आर ऑब्जेक्ट, आई एम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अगर मान लो मेरे को आप कहो कि एक बार चुप रहो थोड़ी देर, हमारी सुनो, और मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, अब आप पढ़ाने लग गए, नाउ यू आर सब्जेक्ट, यू आर टीचिंग मी, तो डूअर इज सब्जेक्ट, एंड डूअर कैन बी ए पर्सन, राइट। जनरली आप देखोगे थिंग का तो जनरली इंट्रोडक्शन देते हैं अपन। अगर मैं बोलूं दिस इज बोर्ड, किसी चीज का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो इज से कराते हैं, तो वो सब्जेक्ट ही होता है। वो चीज मैं अभी आगे लूंगा, बट नॉर्मली आपको बेसिक आइडिया इससे होना चाहिए, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट पहचान में आना चाहिए, बिकॉज वर्ब कॉन्जुगेशन विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पहली पोजीशन पे ही आएगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, इसलिए उसको सेंटेंस में पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। जैसे मान लो मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाऊं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप अगर मान लो किसी सेंटेंस को देखो, एश बिजुक है, ई आता ना, इसके हिसाब से बिजुखन का मतलब होता है टू विजिट, बिजुखन का मतलब है टू विजिट। मैं आऊंगा अभी ऑब्जेक्ट पे, तो इसके हिसाब से मैंने आपको बोला कि वर्ब का कॉन्जुगेशन en से हटके ई हो जाएगा, इसका मतलब है आई एम विजिटिंग। अब आगे बताना तो पड़ेगा किसको। अगर मैं बोलूं आई एम विजिटिंग राम, तो राम ऑब्जेक्ट हो गया, ये कह रहा हूं मैं, राइट। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम डूइंग योगा, तो योगा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं तो सब्जेक्ट हूं। माखन वर्ब है, टू मेक या टू डू, टू मेक, टू डू। सो इस बिजुक है राम, इश, मख है योगा। अभी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ये तो मैंने केवल वर्ब को कंजुगेट करने के लिए आपको दिखाया है कि हर बार आपको ध्यान में रखना पड़ेगा
EST, ये वर्ब का कंजुगेशन कैसे होता है, एक बार समझ गए तो फिर हर बार आपको आइडिया लगता जाएगा। अब यहां पे मैंने बोला इश माख है योगा, आप इसको ऐसे मत समझ लेना कि सब्जेक्ट है तो हमेशा पहले ही आएगा, सब्जेक्ट थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं योगा माख है इश। जर्मन लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल इन दिस मैटर। इसको मैं ये भी कह सकता हूं ये सब्जेक्ट है, आई नो। ये कैसे पता ये सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब का कंजुगेशन इसके हिसाब से हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट है। बट कोई बंदा ऐसे भी कह सकता है योगा माखे इश, योगा माखे इश। जर्मन लैंग्वेज में इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, हर बार सब्जेक्ट के पास दो चांस हैं, सब्जेक्ट कैन कम ऑन फर्स्ट पोजीशन और सब्जेक्ट कैन कम ऑल्सो ऑन थर्ड पोजीशन। ये जर्मन लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बोथ आर एग्जैक्टली द सेम, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सही और सेम है। अब आपको अगर मान लो ये पहचान में नहीं आया कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप तो इसको सब्जेक्ट समझ जाओगे। इसलिए आपको पर्सनल प्रोनाउन प्रॉपर तरीके से सीखना जरूरी है। इस देखते ही समझ जाना कि ये तो सब्जेक्ट है, और इसके हिसाब से ही वर्ब का कंजुगेशन आया है। बट वर्ब रिमेन्स ऑन सेकेंड पोजीशन। बेसिक सेंटेंस में आप देखोगे वर्ब इज ऑलवेज ऑन सेकेंड पोजीशन। Here also verb is on second position and here also verb is on second position. But how we recognize the subject? We will see the conjugation of the verb. Verb का part देखेंगे, verb का conjugation देखेंगे, उससे पता चल जाएगा हमको कि वो कैसे conjugate हो रहा है। Okay, object की बात करते हैं थोड़ी सी। So now we know ish, do, arsg, ish, do, arsg, wear, ear, z, ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अलावा और क्या ही हो सकता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कोई रामू हो सकता है, ये सिंगुलर है लेकिन ये मैस्कुलिन है, ये न्यूट्रल है, ये प्लूरल है, सॉरी फेमिनिन है, और ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल। सब्जेक्ट या तो ये होगा या इसकी जगह किसी का नाम होगा, मे बी मोहन, तो मोहन होगा तो यहां पे होगा मोहन। राजू, तो राजू होगा तो भी यहीं पे होगा, बिकॉज मोहन राजू जो हैं वो एयर की जगह है। दोनों नहीं, कोई एक की बात कर रहा हूं मैं। मोहन और राजू दोनों की बात करेंगे तो यहां आ जाएंगे, बिकॉज नाउ दे आर प्लूरल। यहां पे इनमें से कोई एक, सपोज निर्मला कोई फीमेल पर्सन है, निर्मला, तो जी के हिसाब से हम लोग उसको काम में लेंगे। निर्मला सिंगुलर है, तो इनका जो कंजुगेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ई एन। मान लो राम और सीता दोनों आ रहे हैं, राम और सीता मुझे विजिट कर रहे हैं। राम और सीता दो हो गए तो यहां पे प्लूरल में काउंट हो जाएगा वो, राम और सीता। फिर उसको ईएन। राम और सीता योगा करते हैं तो मैं बोलूंगा राम और सीता माखन योगा, क्योंकि प्लूरल के साथ ईएन लगता है, तो फिर होगा राम और सीता, ये सब्जेक्ट हो गए दोनों मिलके, माखन योगा। और जो मैंने अभी आपको बताया उसके हिसाब से मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं योगा माखन राम और सीता। अब मुझे पता है कि सब्जेक्ट ये है, क्यों? क्योंकि ईएन आता, प्लूरल के हिसाब से ईएन आता है। सिंगुलर योगा तो सिंगुलर है, अगर योगा सब्जेक्ट होता तो टी आता ना। योगा होता तो या तो मैस्कुलिन होता, या न्यूट्रल होता, या फेमिनिन होता, और उसके हिसाब से ही फिर वर्ब का कंजुगेशन टी आता। बट आई नो राम एंड सीता दे आर सब्जेक्ट, दे आर प्लूरल एंड दे आर सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से मैंने
यहां पे वर्ब का कंजुगेशन en किया है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। अभी तक तो सब्जेक्ट की बात चल रही है। जब आप ऑब्जेक्ट काम में लोगे तो जैसे सब्जेक्ट का तो हमको पता चल गया कि वो एक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग पता चल गया सब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी वही होते हैं, जो सब्जेक्ट हैं वही ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब मैं देवकरण सब्जेक्ट हूं तो मैं ही ऑब्जेक्ट हूं किसी सेंटेंस में। मैं योगा करता हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं। तुम मुझे विजिट करते हो तो विजिट करने वाले तो तुम हो, लेकिन मुझे बोलते ही मैं ऑब्जेक्ट हो गया। सो वही बात वापस से कि सब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन, थिंग, आइडिया और क्या, फीलिंग, प्लेस, एनिमल। तो जब मैं आपको कह रहा हूं कि सब्जेक्ट, तो ये सेम ऑब्जेक्ट भी यही होगा। जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो भी ऑब्जेक्ट कैन बी ए पर्सन, थिंग, आइडिया, फीलिंग, प्लेस, एनिमल, वही तो होगा। आपको ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है, कौन से सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है। जो डूअर है वो सब्जेक्ट है। अब ये जैसे आपने ये टेबल सीखी है इश, डू, एर, एस, जी, ऐसी टेबल ऑब्जेक्ट की भी होती है। वो मेरे को एक बार लिखनी पड़ेगी, फिर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ये आपने ऑलरेडी देखी हुई है टेबल। ये जो टेबल है वो है जी ईनन, जी ईनन, ये टेबल है। फिर डू डिश डियर, डू डिश डियर काम में कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। एयर इन ईम, एयर इन ईम। देन एस एस ईम, एस ईम। देन इशमिशमियर, राइट, और जी ईयर, जी ईयर। वियर उन्स, वियर उन्स। ईयर ऑइश, ईयर ऑइश। इशमिशमियर एंड जी ईनन, इशमिशमियर एंड जी, कैपिटल है ये, जी ईनन। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। पहली लाइन जो है वो सब्जेक्ट की है। सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। सब्जेक्ट इज नॉमिनेटिव। जर्मन में सब्जेक्ट के लिए एक दूसरा वर्ड है नॉमिनेटिव। यहां पे मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं, इधर नॉमिनेटिव लिख रहा हूं। कभी कभी ये वर्ड आके हमको कंफ्यूज करते हैं, डराते हैं, पता नहीं क्या ही है ये नॉमिनेटिव क्या बोला है। सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम है नॉमिनेटिव। जैसे सब्जेक्ट नॉमिनेटिव है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के दो नाम हैं, अकुजाटिव, डाटिव। ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट का एक नाम है अकुजाटिव और इस वाले ऑब्जेक्ट का नाम है डाटिव। फर्क क्या है वो अभी बात करेंगे हम लोग। दिस इज द टेबल फॉर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के लिए ये टेबल है। पर्सनल प्रोनाउन में तो आई, मी, टू मी, मैं, मुझे, मुझको, तू, तुझे, तुझको, वह, उसे, उसको, उस तरह से ये टेबल है आपकी। सो इन इंग्लिश यू कैन से आई, मी, टू मी, मैं, मुझे, मुझको। आई मी बोलता हूं मैं, तो मैं ये कह रहा हूं आपको दिस इज सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, दिस इज, हेलो बेटे, दिस इज आकुजाटिव एंड दिस इज डाटिव। आई ये है, मी ये है, टू मी ये है डाटिव, यू टू यू, तू तुझे, तुझको, ही
हिम टू हिम, वह उसे उसको, इट टू इट, सी हर टू हर, वी अस टू अस। अब यहां पे है वे दोनों नहीं, तुम दोनों, जो सामने होता है उसके लिए, या तुम सब के लिए भी, तुम सब लोगों के लिए भी मैं ईयर यूज करूंगा। सो इसका है यू बोथ या यू ऑल, दोनों मीनिंग है इसका। यहां भी यू बोथ, यू ऑल, और यहां पे टू यू बोथ और टू यू ऑल, यही मीनिंग है इसका। एंड दिस इज रेस्पेक्टफुल, फॉर्मल। सो अगेन यू टू यू, आप, आई विजिट यू मीन्स मैं आपको विजिट करता हूं। यू ये वाला जो है ये है इनफॉर्मल, मैं तुमको विजिट करता हूं। तू तुझे, तुझको, ऐसे ही आप आपको, आपको। दिस इज दे देम टू देम। अब जैसे मान लो कि यहां पे मैंने लिख दिया और हिंदी में भी आपको बता दिया कि ये कैसे काम में आता है। मैं, मुझे, मुझको, तू तुझे, तुझको, वह उसे उसको, वह उसे उसको, वह उसे उसको। बट यहां पे पता चल रहा है ना कि ये फेमिनिन की बात हो रही है, तो वह उसे उसको, हम हमें हमको, तुम तुम्हें तुम सबको, आप आपको आपको, वे उन्हें उनको, दे देम टू देम, ऐसे करके इनका मीनिंग दिख रहा है। तो दिखने में तो ऐसे लग रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। बट एक हल्की सी दिक्कत रहती है यहाँ पे। कई लोगों को दिक्कत आती है, ये है कि ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट के दो हो गए, कौन सा लें? क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी बोलो तो पता नहीं चलता। मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तुझको दे रहा हूं, और ये दोनों ही सही है यार, कौन सा बोलूं? मतलब ये वाली लूं कि ये वाली लूं, फर्क तो है इनमें, राइट। मैं तुझे विजिट करता हूं, मैं तुझको विजिट करता हूं, दोनों ही चलते हैं यार। तो रिकॉग्नाइज कैसे करें कि कौन सा सही है? इसको रिकॉग्नाइज करना आ जाए तो बेसिक लेवल में सेंटेंसेस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। इसको रिकॉग्नाइज करना ही बड़ी बात है बस। इसको रिकॉग्नाइज करते ही आपको ये फीलिंग आ गई कि ताला खुल गया। ये ताला खोलना जो है वो वर्ब से खुलेगा ताला। आपको वर्ब की कैटेगरी समझनी पड़ेगी। जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सब्जेक्ट तो डूअर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। डूअर इज ऑलवेज सब्जेक्ट। अरे कोई सो तो नहीं गया है ऑनलाइन वाले? नहीं, सोए नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, सोना मत, राइट, ओके ओके। कहीं देखो सर, आपके यहाँ है गर्मी, हमारे यहाँ तो एसी चला रखा है हमने, तो आ गई नींद, आ भी सकती है, बट नींद आ गई तो ओके, शाबाश, कूल। तो सब्जेक्ट जो है ये तो क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, कोई होना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन इसमें जनरली गुंजाइश नहीं रहती कंफ्यूजन की, बिकॉज डूअर इज सब्जेक्ट। बट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करें? इसके लिए जैसे पर्सनल प्रोनाउन की 3 कैटेगरी है, राइट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो देखा है हमने। नाउन की 3 कैटेगरी है, वो हमको देखना पड़ता है। वैसे ही वर्ब की भी 3 कैटेगरी, आप ऐसे मान के चलो। जो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव है, बल्कि वर्ब की तो 4 कैटेगरी है, हम 3 की बात करेंगे अभी एक बार। वर्ब तो हजारों हैं जर्मन लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में हजारों वर्ब हैं ही। 2-3 वर्ब से ही काम थोड़ी चलता रहता है। खा लो, पी लो, सो लो। खाने पीने सोने से तो काम नहीं चलना, काम भी जाना पड़ता है, काम पर भी जाना पड़ता है, तो काम करना, राइट। किसी के लिए खरीदारी करनी पड़ती है, कोई नाराज भी होता है, कोई खुश भी होता है, तो ये खुश होना, नाराज होना, कोई आपको पीट भी देता है, किसी को आप गिफ्ट भी देते हो, ये जितने भी एक्शन हैं, राइट, फीलिंग है, एक्शन है, जो भी हैं, हजारों वर्ब हैं लैंग्वेज में, जिसमें जितनी ज़्यादा वर्ब वो उतनी रिच, राइट। तो ये हजारों वर्ब हैं,
ये देखते ही पता चलनी चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी की है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन 3 कैटेगरीज डिवाइडेड। जैसे पर्सनल प्रोनाउन को नाउन को आपने किया, नाउन कैन बी नॉमिनेटिव, नाउन कैन बी एक्यूजेटिव, नाउन कैन बी डाटिव। द सेम वे नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन का बोल दिया मैंने, ऐसे भी बोल सकता हूं प्रोनाउन कैन बी नॉमिनेटिव, प्रोनाउन कैन बी एक्यूजेटिव एंड प्रोनाउन कैन बी डाटिव, जो अभी अपन ने देखा। जैसे नाउन और प्रोनाउन की 3 कैटेगरी है, ऐसे ही वर्ब की भी मोस्टली 3 ही कैटेगरी है। वर्ब वुड बी नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डाटिव, मोस्टली ये 3 कैटेगरी होंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नॉमिनेटिव में केवल 4 वर्ब है, थैंक गॉड। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। जर्मन जितनी भी है, हजारों वर्ब में से केवल 4 वर्ब ऐसी हैं जो प्योरली नॉमिनेटिव वर्ब हैं। जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ये 4 वर्ब नॉमिनेटिव हैं और 4 ही हैं। इसलिए जर्मन टफ नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटिव वर्ब पहचाननी पड़ेगी, तो ये 4 ही हैं। मान लो आपकी बुआ जी के 4 ही लड़के हैं, तो पहचान जाओगे उनको, रवि, दिनेश, सोहन और चौथा रामोतार। रवि, दिनेश, सोहन और रामोतार, 4 ही लड़के हैं, तो पहचान ही जाओगे बार बार देख के, राइट। ओके, मेरी बुआ जी ये वीडियो देख रही हो तो बुरा नहीं माने, मैंने नाम लड़कों के अलग बोल दिए हैं, वो आपके लिए नहीं था, जनरल बोला है मैंने, राइट। सो मान लो 4 ही हो तो पहचान जाओगे आप। लेकिन ऐसे ही डाटिव वर्ब हैं और एक्यूजेटिव वर्ब्स हैं। 3 ही कैटेगरी में सारी वर्ब आने वाली हैं जर्मन की। डाटिव वर्ब्स में मुझे फायदा ये हो गया कि जर्मन्स ने दो ज्यादातर डाटिव वर्ब्स हैं, राइट। हम लोग बेसिक लेवल पे अभी बात कर रहे हैं, कभी एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे। ज्यादातर जो डाटिव वर्ब है जर्मन्स ने मेरे नाम पे रखी, इसलिए मेरा काम इजी हो गया। देव जी है पास, मेरा नाम देवकरण है, तो मेरे नाम पे उन्होंने ये वर्ब रखी, तो मेरा काम आसान हो गया। डाटिव वर्ब्स हैं देव जी है पास, देव जी है पास। इसके अलावा कभी और बात करूंगा मैं आपको। आप तो ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब बिगिनर हो आप, तो इसी से आपका काम चलेगा। देव जी है पास में गिह्योरन, गिफालन, ग्राटुलियरन, ग्राटुलियरन, गिफालन और गिह्योरन, गिफालन, गिह्योरन। हेल्फन, पासन, पासियरन, हेल्फन, पासन, पासियरन। अनपोर्टन, स्मेकन, फोल्गन, फोल्गन, एसगेट, अनपोर्टन, डंकन, अनपोर्टन और स्मेकन, अंटवॉर्टन और स्मेकन। इनको हम लोग बेसिक लेवल पे डाटिव वर्ब मान के चलते हैं। मान लो कोई ढूंढ के लाए मेरे पास, बोले ये भी तो है, ये क्यों नहीं बता रहे, राइट। शुरू में आपको इतना ही लर्न करने की जरूरत है। एडवांस क्लास में कभी अपन सारी डाटिव वर्ब्स की भी बात कर सकते हैं और भी कोई, बट दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटिव वर्ब्स, जो अगर एक बार आपको आ जाए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि मुझे सेंटेंस बनाने आते हैं। बिकॉज देर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन। सेकेंड कैटेगरी इज डाटिव वर्ब्स, देव जी हैं पास, और बच गई उनको हम लोग एक्यूजेटिव मान लेते हैं। जो वर्ब बच गई वो एक्यूजेटिव। इसी से एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड होगा। अब हमारे पास अगर ये वर्ब है तो हमको कोई XYZ हजारों वर्ब में से निकाल के लाए, वर्ब पूरा गोता खा के जर्मन में से वर्ब निकाल के लाए बिजुखन, तो बिजुखन में हम तुरंत बताएंगे उसको कि बिजुखन इसमें है क्या, नहीं है,
बिजुखन 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 नहीं है, मतलब वो वर्ब आकुजाटिव है। ऐसे हमको रिकॉग्नाइज करना है वर्ब को। मान लो कोई बोले कि चल ये बता जुखन, आपने तो सुना भी नहीं, आपने सुना नहीं तो बोल दो आकुजाटिव। अगर वो वर्ब है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब आकुजाटिव होनी चाहिए। कोई बोले लीबन, आकुजाटिव। ऐसे आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, जी भर के इसको देखो, और फिर हम लोग कोई भी वर्ब आएगी और हम लोग बता पाएंगे कि ये नोमिनेटिव है, आकुजाटिव है, ये डाटिव है। इन 3 में से ही होगी। आप ये मान के चलो। आप सोचो, मैं जब तक यहां पे मीनिंग लिखता हूं, आप इनको जी भर के आंखों से स्कैन कर लो, मैं बोलूं तो बता देना डाटिव। पासिव इज टू फिट।